Hey there, little learners. Welcome to Silver Line Books by Turning Point Publishing House. This is Achal, your teacher and your friend, and we are taking up My Green World for Class 3. Okay, so we are going to begin with chapter number 11, right? And it is about air and water. We were doing the unit number 6, right? जो हमारी needs के बारे में थी. We were talking about our needs. पहली need हमने कौन सी पढ़ी थी? We talked about food that we eat, right? A food is essential for growing, for living, right? To remain healthy and fit. So for all that we need food. And in this we'll be talking about air and water. ये दोनों भी एक बहुत ही essential nutrient है, एक essential component है हमारी life का, right? Not nutrient. So children, place a newspaper folded in half on a table and place a table fan beside it. आप एक newspaper को fold करके, right, half में fold करके एक टेबल पर रखें and if you place a table fan beside it और उसको on कर दें तो आप क्या observe करेंगे, right? उसके जो pages हैं वो हवा की वजह से open होने लगेंगे, right? वो उड़ने लगेंगे. You will see the pages of that newspaper blowing in air. The newspaper will open up, right? So why does this happen? ऐसा क्यों हुआ है? Because air, it moves things. Air के अंदर अपना एक force होता है जिसकी वजह से वो चीजों को move कर सकती है, right? So let's talk about air in detail. We are surrounded by air, right? जहाँ मैं खड़ी हूँ, you may not be seeing air. आपको मेरे आसपास air तो नहीं दिख रही है ना? But air is everywhere. Air is all around us. We cannot see it, but we can definitely feel it. We cannot see it, but we can feel it when it blows, right? जैसे fan चलाया आपने, तो आप हवा को feel कर सकते हैं, right? So this moving air, this air is known as wind. This is the wind, the moving air, right? The air when moves, it is called wind. You would have seen it blowing the trees and felt it blowing your hair, right? जब हवा चलती है तो आपने observe किया होगा पेड़ पौधे हिलते हैं, right? ग्रास होती है, अगर टॉल ग्रास है तो वो भी हवा के साथ लहराती है. आपके बाल खुले हों, आपके बाल भी हवा के साथ ब्लो करते हैं. So air can move things. We breathe in air all the time. और air क्यों important है? क्योंकि हम air को हर टाइम breathe in करते हैं. उसमें से जो oxygen है that is very essential for us. So air को हम all the time breathe in करते रहते हैं, हम सांस लेते रहते हैं. Let us try to hold our breath for some time. We cannot hold it for more than a few seconds. आप सब try कीजिए, try कि आप सांस ना लें, right? Hold your breath for some time, but you will see that you will not be able to do that for more than a few seconds. कुछ seconds में ही आपको air की need महसूस होने लगी. You will feel short of breath. We need air to live, right? Air नहीं होगी, अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे, air नहीं होगी, तो हम जिंदा नहीं रह सकते. All living things need air to live, चाहे वो animals हो, plants हो, human beings हो, everyone, every living being, every living thing needs air to live, right? Air is made up of several gases. और ये जो air है ये बहुत सारी gases से मिलकर बनी है. कौन कौन सी? Of these three gases, air has the greatest amount of nitrogen, right? सबसे ज़्यादा जो gas हमारी air में मौजूद है वो है nitrogen. It is about 78%. Then oxygen is the most important gas as we need oxygen. हमें oxygen जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. Next important gas is oxygen, right? It is the most important gas. Though it is not as abundant as nitrogen in the air, इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी nitrogen है air में, but this is very essential. It's the most important gas that we need to live. Right? Now, what do you know what all three gases are there? Mainly, what three gases are there in the air? It is nitrogen, oxygen, and carbon dioxide is also there. Now let's talk about clean air. साफ air कौन सी होती है? Air that has smoke and harmful gases is not clean. जो air में pollutants मिले होते हैं, इतनी smoke होती है, dust होती है, right? इससे क्या होता है? हमारी जो air है वो unclean हो जाती है, impure हो जाती है. Air that is not clean is said to be polluted. और ये air polluted मानी जाती है, right? ये जो smoke है,
डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सब क्या है, ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारी एयर को गंदा कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, राइट. सो द एयर विच इंक्लूड्स harmful gases and smoke, it is called polluted air. Smoke given out by factories and vehicles pollutes the air. So जो smoke factories से निकलती है और कहाँ से निकलती है, व्हीकल से जो स्मोक निकलती है उससे हमारी हवा बहुत गंदी हो जाती है. बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, दिवाली पर जो लोग पटाखे बजाते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. वुड जलाते हैं, राइट, वुड जलाने से भी कितना, आपने देखा होगा कितना धुआं निकलता है, उससे भी एयर गेट्स पोल्यूटेड. देन बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो हम जो कार्स चलाते हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, राइट, वो सब क्या कर रहे हैं, दे आर बर्निंग फ्यूल ओनली. सो उससे भी पोल्यूशन होता है. एंड यू सी पीपल बर्निंग गार्बेज ऑल द टाइम, उससे भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूट होती है. सो how do we pollute, air कैसे pollute होती है, what are the reasons? It is polluted by the smoke given out by the factories and vehicles, then by the burning of fuels, wood, crackers or garbage. All these activities, they pollute the air and it becomes unhealthy for us to breathe, right? So हमें ध्यान रखना चाहिए, अपनी activities पर check रखना चाहिए. We need clean air to breathe. If we breathe in polluted air, we will fall sick. अगर हम इसी गंदी हवा को ब्रीथ करते रहेंगे, राइट, तो हम बीमार पड़ जाएंगे. We will fall sick. It can cause harmful lung diseases like asthma. इससे harmful lung diseases जैसे कि asthma होने की आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है asthma की. What is asthma? जिसमें आपको सांस लेने में तकलीफ होती है. You get breathing problems when you have asthma. It also irritates the eyes. We must help in keeping the air around us clean. और अगर आप देखेंगे कहीं बहुत धुआं है, बहुत स्मोक है, राइट, पोल्यूटेड एयर है, तो आपकी आईज में भी इरिटेशन होने लगती है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, राइट, इन्फेक्शन हो जाता है आपकी आईज में बिकॉज ऑफ दीज पोल्यूटेड एयर दैट यू लिव इन, राइट, जिसमें आप एक्सपोज होते हैं अगर इस पोल्यूटेड एयर से, राइट. सो ऑल दीज प्रॉब्लम यू हैव टू फेस. सो वी हैव टू keep in mind, we should also help in our ways to keep the air clean. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं. बच्चों, प्लांट्स जो हैं वो एयर को क्लीन करते हैं. एंड ट्राई टू यूज लेस व्हीकल्स. अगर आपको छोटी जगह, छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ट्राई टू वॉक, ट्राई टू गो बाय बाइसिकल, राइट, ट्राई कार पूलिंग विद योर फ्रेंड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा ट्रैवल करें. बाय ऑल दीज वेज यू कैन हेल्प इन कीपिंग चेक ऑन दी एयर पोल्यूशन. Now here are some ways in which we can help. Let's have a look at them. Plant more trees. Trees help to clean the air. जितना हो सके trees plant कीजिए. Do not burn garbage or dry leaves. जो garbage है, dry leaves है, right, polythene bags हैं, इनको बिल्कुल burn नहीं करना चाहिए, right. इनसे बहुत ही harmful gases produce होती हैं जिससे air हमारा pollute होता है. Avoid the use of प्लास्टिक बैग्स एंड नेवर बर्न देम. प्लास्टिक बैग्स को यूज भी नहीं करना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेवर बर्न देम, क्योंकि उसके अंदर से बर्न करने पर जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत पॉइजनस होती हैं, राइट. सो नेवर बर्न प्लास्टिक. सिंस स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स पोल्यूट्स द एयर, वी शुड ट्राई टू वॉक और साइकिल टू नियर बाय प्लेसेस, राइट. व्हीकल्स में से जो स्मोक निकलती है वो कितना बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का. सो इफ वी हैव टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस, if you have to go to any nearby place, try to walk to that place or try to use a bicycle for that to go to that place, right. We should always try to use buses, metros or carpools when we travel long distances, right. share करें कार को. अगर एक ही जगह पर 4 बच्चों को जाना है, just imagine if they all go in different cars, कितना fuel burn होगा. compare it when चारों के चारों बच्चे एक ही कार में जाएंगे या फिर बस में जाते हैं, जितने इतने सारे लोग अगर अपने एक सेपरेट कार लेकर निकल जाएं, सो ट्रैफिक भी बढ़ता है रोड पे, राइट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है. सो क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बसेस में, ट्रेन्स में, मेट्रोज में ट्रैवल करना चाहिए, राइट. ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं. देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर कारपूल विद योर फ्रेंड्स. कभी आप ले जाए कार, कभी आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स ले जाए, राइट. सो दीज ऑल वेज, बाय दीज मीन्स you can help in controlling the air pollution. Now children, this polluted air, it has many germs. इसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं. When we breathe in the germs,
वी कैन फॉल इल। जब हम इसी पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते हैं तो ये जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, हमें सिक कर देते हैं। टू रिड्यूस जर्म्स इन दी एयर, अब हवा में हम जर्म्स जो हैं उनसे कैसे बच सकते हैं? ऑलवेज यूज अ हैंडकरचीफ टू कवर योर माउथ व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग। जब आपको छींक आ रही है या आप खांसी कर रही हो, कफिंग, सो हमेशा अपना माउथ हैंडकरचीफ से कवर करें, राइट? क्योंकि अगर आप ऐसे ही स्नीज कर देंगे तो आपके जो जर्म्स हैं, राइट, वो पूरे हवा में फैल जाएंगे एंड somebody else might get infected through those germs. So आपको हमेशा whenever you cough or sneeze, you must cover your mouth with a handkerchief. Do not spit in the open, right? कभी भी आप open में spit नहीं करें, यानी थूके नहीं, right? That's very bad thing to do. Throw garbage in a covered dustbin and not in the open. कभी भी जो कूड़ा है, garbage है, उसको आप ओपन में ना थ्रो करें, ऑलवेज थ्रो इट इन दी कवर्ड डस्टबिन्स। डस्टबिन्स भी कवर्ड होने चाहिए, इससे क्या होगा? हमारे एयर में जर्म्स स्प्रेड नहीं होंगे, राइट? आवर एयर विल बी क्लीन। ऑल फैक्ट्री ओनर्स and owners of vehicles must make sure that their factories and vehicles do not give out smoke and poisonous gases, right? Cars का pollution check होता है, do you know that? आपको regularly pollution check कराना चाहिए कि कहीं आपकी कार हार्मफुल गैसेस तो नहीं रिलीज कर रही है। एंड ऑल्सो फैक्ट्री ओनर्स को भी अपनी चिमनीज में जहाँ से उनका ये स्मोक एमिट होता है वहाँ फिल्टर्स लगाने चाहिए, राइट? दे शुड गेट देयर गैसेस चेक्ड कि कोई हार्मफुल गैसेस तो एयर में रिलीज नहीं हो रहे हैं। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी आवर एयर जो है, हमें ही क्लीन रखना है, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर अस। सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू डू, you can help in controlling the air pollution and making the air clean to breathe in, right? Now the government also had made rules to ensure that people do not pollute the air. Government भी बहुत सारे initiatives ले रही है इस चीज को लेके कि लोग air को pollute ना करें, गंदा ना करें, and we must follow these rules, और हमें भी इन rules को follow करना चाहिए, right? जैसे आपने अभी कुछ ही टाइम पहले देखा था, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था, इवन और ऑड का सिस्टम स्टार्ट किया था कि एक दिन सिर्फ इवन नंबर्स कार्स चलेंगी और एक दिन ऑड नंबर की कार्स चलेंगी, राइट? सो दीज आर स्मॉल इनिशिएटिव्स दैट आर टेकन बाय आवर गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, राइट? तो हमें भी उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट जो हमारे लिए ही काम कर रही है, राइट, फॉर आवर बेनिफिट, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और जो भी वो रूल्स बनाते हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। Let us try our best to keep the air clean so that we do not fall sick. हम बीमार पड़ेंगे अगर एयर गंदी होती है तो ये नहीं किसी और को प्रॉब्लम होगी, we are the ones getting affected, हम, हमारे पेरेंट्स, राइट? सो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स के साथ आप जाते हैं, राइट, रिक्वेस्ट देम टू शट ऑफ देयर इंजन, टू शट देयर इंजन ऑफ व्हीकल पे जिसमें भी आप हैं, जब आप रेड लाइट्स पर रुके होते हैं, राइट? इससे क्या होगा? फ्यूल कम बर्न होगा। सो आप अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कार पूल कर लें उनके साथ, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू, दीज आर ऑल स्मॉल वेज बाय विच यू कैन contribute in controlling the air pollution, right? So we talked about air in this section. हमने air जो कि एक बहुत essential component है उसके बारे में बात करी. Now we'll be talking about another need, that is water, right? Water is equally essential for us. We need water to live. ये भी हमें जीने के लिए चाहिए ही चाहिए. We cannot live for more than a few days without water. अगर हम कुछ दिन पानी नहीं पीते हैं, right? So we cannot survive more than I don't think you can survive more than 6 to 7 days max, right? 3-4 days में you'll start facing problems. Max a week you can survive without water. We need to drink water every day. It helps us to stay healthy, right? हमें रोज पानी पीना चाहिए. Plenty of water we should consume, at least 8 to 10 glasses of water. I always tell you, right? क्योंकि ये जो पानी है ये हमारे बॉडी फंक्शंस में हेल्प करता है, हमारे को हेल्दी रहने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट. वी नीड वाटर. किस किस चीज़ के लिए पानी चाहिए होता है हमें? फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, बेदिंग, राइट, नहाने के लिए, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए वी नीड वाटर. वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, राइट, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स. हाउसेस को भी अगर आपको वॉश करना है, किसी भी चीज़ को वॉश करने के लिए वी नीड वाटर. देन फॉर क्लीनिंग, आपके हाउसेस क्लीन करने हैं, आपको व्हीकल्स क्लीन करने हैं, फॉर ऑल दैट यू नीड
water, right? So water is very important. We cannot live without it. A small activity for you children. How do you feel if you do not drink water for a long time? अगर कोई टाइम ऐसा जाए, बहुत टाइम तक आप पानी नहीं पीते हैं, right? मे बी सुबह से लेके शाम हो जाए. So how are you going to feel? You'll feel parched. आपको बहुत प्यास लगेगी, thirsty feel करेंगे, right? You'll feel low on energy, right? So you should always drink plenty of water in your day. From where do you get water? What are the sources of water, children? Yes, we get them from water bodies like river, like we get lakes, seas, right? And also, most important, the source of fresh water is the rain, right? Rain is the most important source of water. Is there a river that flows in your area? What is its name? जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, right? क्या आपके आसपास कोई नदी बहती है, कोई रिवर बहती है? और अगर यह बहती है तो वो कौन सी रिवर है? Please tell us the name of that river. We get water from rain. हमें rain से भी पानी मिलता है. Rain water fills up lakes, rivers, ponds. इन सब चीजों को, तालाबों को, rivers को पानी कहाँ से मिलता है? Rain से जो पानी आता है वही इन सब में flow करता है. Some of the water goes under the soil. कुछ पानी जो है वो soil के अंदर sink in हो जाता है और वो क्या बन जाता है? Underground water. It collects deep down in the earth. वो earth के नीचे अंदर कलेक्ट हो जाता है. एंड उस पानी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस वाटर को यूज करने के लिए we dig wells. हम कुएं खोदते हैं उस पानी को निकालने के लिए. We use tube wells also, hand pumps, right? All these जो ये चीजें हैं ये हमारे को अंडरग्राउंड वाटर प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो जो रेन वाटर है उसका कुछ पार्ट रिवर्स में जाता है, सीज में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है, and also a part of it sinks into the soil and it becomes underground water. River water flows into the sea. ये जो पानी रेन का वाटर रिवर्स में जाता है और ये रिवर्स वो पानी लेकर सीज में जाती हैं, सीज में मिल जाती हैं. There is a lot of water in seas and oceans. बहुत सारा पानी है सीज और ओशियंस में, बट वो जो पानी है वो सॉल्टी है. आप उस पानी को पी नहीं सकते. That is not the water that you can drink. This water is salty. We cannot drink it, right? तो आप ये मत सोचिए कि हमारे पास बहुत सारा पानी है, इतने सीज हैं, ओशियंस हैं, so we can waste water. No, क्योंकि इतना जो पानी है सीज में एंड ओशियंस में, we cannot drink it. Drinking water जो है वो काफी कम है. Only 3% water is fresh water जो हम पी सकते हैं. So just imagine how harmful, what bad things we are doing to ourselves if we are wasting water, right? So always think about wasting even a drop of water next time. Now this water that we are talking about, children, it exists in different states, right? Solid form में भी exist करता है, liquid form में भी, जैसा पानी होता है usually, and it also exists in gaseous form. Now let's talk about that. Water is found in 3 states, that is liquid, जो normally हमें usually पानी दिखता है. Solid form में पानी क्या होता है? When you freeze the water, what do you get? We get ice. और ice कैसी होती है? Solid होती है, right? So solid form of water is ice. And gaseous form of water is जब हम पानी को boil करते हैं. So what do you see? You see cloud दिखता है ना आपको, एक cloud सा दिखता है vapors का. So that vapor जो steam होती है, that is the gaseous form of water. So as a solid it is found as ice. As a liquid, it is found as water itself, and as a gas, it is found as water vapor, right? And also, हमारी जो air है, उसमें भी water vapor होता है. Water can change its form from ice to water, water to water vapor, right? ये जो तीनों forms of water हैं, they are interchangeable. Ice से water भी बन सकता है, water से vapor बन सकता है. जो vapor है वो वापस से कूल डाउन होकर फिर से पानी बन जाता है, और पानी को फिर से जब हम कूल डाउन करेंगे तो वो आइस बन जाता है. सो ऑल दीज स्टेट्स ऑफ वाटर, दे आर चेंजेबल, राइट? दे कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओपन योर रेफ्रिजरेटर एंड टेक आउट दी आइस ट्रे. आइस ट्रे निकाले, यू विल फाइंड क्यूब्स ऑफ आइस इन द ट्री. आइस इज व्हाट? इट इज फ्रोजन वाटर, राइट? जो आइस क्यूब्स हैं, दैट इज वाटर ओनली दैट हैज फ्रोजन. Now leave the ice out in the open for some time.
you will find that it changes back to water. क्या हुआ है, वो आइस मेल्ट हो गई है. अगर आप उस आइस को फ्रीजर से निकाल कर बाहर ओपन में रख देंगे, in some time it will melt and it will convert back into water. आप आइस को अपनी पाम पर रख के देखिए, हमारी बॉडी क्या करती है, हीट रेडिएट करती है, राइट. उस हीट से वो जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी और वापस से पानी बन जाएगा. ओके, you will find that it changes back to water and that shows that it has melted. Then ask your mother to put this melted water in a pan and heat it on the gas burner. अब ये जो पानी बन गया है आइस का, टेल योर मदर कि उसको एक पैन में डालकर हीट करें गैस बर्नर पे. क्या होगा, द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड फॉर्म्स अ क्लाउड ऑफ स्टीम. आपको व्हाइट सा भाप उठती दिखेगी, स्टीम उठती दिखेगी, राइट. दिस स्टीम इज वाटर वेपर. ये है वाटर वेपर, जो कि गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है. पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो वो वेपर बनकर हवा में मिल जाता है, राइट. और अगर आप उसको बॉईल करते जाएंगे यू विल सी दैट जो वाटर आपने पैन में डाला था वो फिनिश हो जाएगा, पूरा का पूरा वेपर बन जाएगा, राइट. नाउ स्विच ऑफ द बर्नर. अब आपने जिसमें पानी गर्म किया था उसमें से जो कुछ पानी वाटर वेपर बन गया, अब आपको क्या करना है, उस बर्नर को ऑफ कर दीजिए और उसके ऊपर एक ठंडी सी स्टील की प्लेट रखिए. नाउ व्हाट विल यू सी. अब आप देखेंगे जब आप वो लिड उठाएंगे तो अंदर उस प्लेट पर पानी की ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे आपको. यू विल सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन दैट कोल्ड प्लेट. अब ये कैसे हुआ, क्योंकि वो जो वेपर थे, राइट, वो ठंडी प्लेट की कांटेक्ट में आकर जब वो कूल डाउन हुए, वो जो वेपर्स थे वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए. ओके, सो आफ्टर अ व्हाइल लिफ्ट द लिड एंड लुक एट इट. Drops of water would have formed on the lid. Lid के ऊपर अंदर की तरफ काफी सारे drops of water आपको देखने को मिलेंगे. The steam has turned back to water on cooling. Steam को जब हम cool down करते हैं तो वो वापस से पानी बन जाती है, liquid form में आ जाती है, right? So this is how all these states of water they change themselves. Heat करने पर पानी को आप heat करेंगे तो क्या होगा, वेपर बन जाएगा. वेपर को कूल डाउन करेंगे, पानी बन जाएगा. पानी को फ्रीज करेंगे तो पानी को कूल डाउन करेंगे तो वो आइस बन जाएगी. आइस को थोड़ी हीट प्रोवाइड करेंगे, इट विल कन्वर्ट बैक इनटू वाटर, राइट. सो ऐसे ही चेंज ऑफ स्टेट्स चलता रहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स को पानी क्यों चाहिए होता है. वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो. If you do not give water regularly to the plants in your house, क्या होगा, अगर आप पानी नहीं देंगे जो आपके घर में plants हैं, yes, they will dry up, वो सब सूख जाएंगे. Animals not only need water to drink but also for cleaning themselves. Animals को सिर्फ पीने के लिए ही पानी नहीं चाहिए होता, उनको भी अपनी bodies को clean करना पड़ता है, right? They bathe in that water. Water also provides a home to many animals. और ये जो water है, we all know that कितने सारे एनिमल्स, वाटर एनिमल्स इस पानी में भी रहते हैं, राइट. सो वाटर इज अ होम टू सो मेनी एनिमल्स. सो वाटर वी आर सीइंग इट इज सो एसेंशियल फॉर लाइफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लीन वाटर. साफ पानी कैसे मिलता है हमें. वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट क्लीन इनफ, राइट. ये जो लेक्स में, रिवर्स में हमें जो पानी मिलता है ये साफ नहीं होता. इट इज नॉट क्लीन इनफ टू ड्रिंक. आप इसको पी नहीं सकते. इट कंटेन्स डर्ट एंड जर्म्स. जो ये पानी, नदियों का पानी है, उसके साथ साथ कितने सारे जर्म्स, मिट्टी, डर्ट, वो सब भी साथ में आता है, राइट. सो इस पानी को आप ऐसे ही उठाकर नहीं पी सकते. इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. द वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज फ्लोज इनटू रिवर्स. इन रिवर्स के अंदर जो फैक्ट्रीज है, राइट, वो भी अपना वेस्ट रिलीज कर देती हैं. हमारे जो घर से वेस्ट निकलता है उनको भी रिवर्स में डाल दिया जाता है. सो रिवर वाटर, it is highly polluted. You cannot use it for drinking as it is. This dirties the water. These activities wherein we release the waste from our homes and factories, it pollutes the water, it dirties the water. Drinking dirty water can cause diseases such as डायरिया, जॉन्डिस, बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस जो कि गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं, वो डिजीजेस हो जाती हैं अगर आप इस वाटर को विदाउट प्योरीफाइंग कंज्यूम कर लेते हैं. So the water has to be cleaned before supplying to our home. So हमारे घर में जो पानी आता है वो डायरेक्टली इन रिवर्स से या पॉन्ड से नहीं आता है. क्या होता है, पहले उसे क्लीन करा जाता है, राइट.
The dirt has to be removed and the germs have to be killed. उसमें से पहले dirt को remove किया जाता है, germs को kill किया जाता है. This is done in the water works in our city. हमारे city में government ने water work stations होते हैं, right? जहाँ पर इस पानी को clean किया जाता है and then it is supplied through the pipelines to our houses. Clean water is supplied to our homes through pipes. So ये जो पानी आता है ये cleaned आता है. Even after that वो जो पानी है टैप वाटर उसे भी हमें कभी ऐसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, राइट? समटाइम्स वाटर सप्लाई टू आवर होम्स इज आल्सो नॉट क्लीन, इट इज नॉट वेरी क्लीन, सो उसको भी हमें प्योरीफाई कर कर ही यूज करना चाहिए. वी कैन क्लीन इट एट होम बाय बॉइलिंग इट फॉर अ फ्यू मिनट्स. हम उस पानी को कैसे क्लीन कर सकते हैं? एटलीस्ट 10 मिनट्स यू शुड बॉइल द वाटर. आप उसे बॉइल करेंगे तो क्या होगा, सारे जो जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे, राइट? दिस किल्स द जर्म्स इन इट. We can also use a water filter or a water purifier. आजकल घर में ROs होते हैं, right? Then there are AquaGuards. आप water filter जो दूसरे होते हैं स्टील वाले जिसमें पानी ऊपर डालते हैं वो फिल्टर होकर नीचे आ जाता है, वो फिल्टर्स आप यूज कर सकते हैं, right? So it is best thing if you do not have all these filters तो आप पानी को बॉईल करके यूज करें, right? Now how do we store water? पानी को कैसे स्टोर किया जाता है? Cleaning the water is not enough. It is important to store the clean water properly. सिर्फ पानी को क्लीन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पानी को आपको प्रॉपरली स्टोर भी करना होगा, राइट? आपने पानी तो बॉईल कर दिया, बट इफ यू पुट इट इन अ डर्टी कंटेनर, आप उसे डर्टी कंटेनर में डाल देंगे तो उसको बॉईल करने का क्या फायदा होगा? उस कंटेनर में ऑलरेडी इतने जर्म्स होंगे या आपका जो पानी है वो फिर से गंदा हो जाएगा. सो अदरवाइज इट विल बिकम डर्टी. स्टोर इट इन अ क्लीन कंटेनर. इसलिए आपको एकदम क्लीन कंटेनर में पानी स्टोर करना चाहिए. कीप द कंटेनर कवर्ड सो दैट द डस्ट, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स डू नॉट गेट इनटू इट. और जो आप कंटेनर है जिसमें पानी स्टोर करते हैं हमेशा उसको कवर्ड रखें, राइट? अदरवाइज क्या होगा, उसके अंदर मिट्टी, जर्म्स, फ्लाइज, इंसेक्ट्स सब गिर जाएंगे और पानी वापस से गंदा हो जाएगा. इट विल बिकम अनक्लीन, इम्प्योर अगेन, राइट? सो it is not only important to clean the water, it is equally important to store it also in a proper and a clean container. Now given here are some pictures of the containers used to store water in our houses. ये सब हम चीजें यूज करते हैं. This is a jug, this is water tank. इसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में वाटर आता है, यूजुअली हाउसेस के ऊपर लगा होता है, राइट? Then this is a big water bottle, a small plastic water bottle. And this is a steel bucket. इसके अंदर भी पीने का पानी स्टोर किया जाता है. So these are ways of storing water in clean containers. Which of these are used in our house, your houses? Please check कि इनमें से कौन से जो containers हैं आपके घर में यूज किए जाते हैं. What are these containers made of? और ये जो containers हैं ये किस चीज के बने होते हैं? ग्लास के बने होते हैं, प्लास्टिक के, स्टील के, right? Check all these things. And which container can store the most water? आप इसमें देखकर बताएं इनमें से कौन सा कंटेनर है जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगी? Yes, the water tanks जो हमारे घर के छत पर लगे होते हैं. They can store the maximum amount of water, right? Now, few facts for you children. There are some plants like cactus that can live without water for days. That is why you find them in the desert where there is very little water, right? वैसे तो हमें पता है कि प्लांट्स को वाटर चाहिए ही है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इतना पानी नहीं चाहिए होता, जैसे कि कैक्टस प्लांट जो है, राइट? वो बहुत दिन तक विदाउट वाटर सरवाइव कर लेता है, इसीलिए वो डेजर्ट्स में पाया जाता है. एंड कैमल्स भी एक ऐसे एनिमल हैं जो पानी के बिना बहुत दिनों तक रह पाते हैं. कैमल्स कैन गो विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज. दे यूज अप वाटर दैट दे हैव इन देयर बॉडी. वो अपनी बॉडी में जो पानी है उसको यूज कर लेते हैं, राइट? वो एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं एंड दे स्टोर इट इन देयर बॉडी एंड दे कीप ऑन यूजिंग इट. जब वो डेजर्ट में होते हैं और उनको और पानी नहीं मिलता, सो दे डोंट फेस प्रॉब्लम्स. सो व्हेन दे गेट वाटर अगेन दे ड्रिंक ह्यूज अमाउंट्स एंड रिप्लेस द लॉस्ट वाटर. और जब उन्हें वापस से पानी मिलता है फिर से वो बहुत सारी क्वांटिटी में एक ही बार में पानी पी लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे यूटिलाइज करते रहते हैं, राइट? सो एंड कैमल जो है वो ऐसा एनिमल है और कैक्टस ऐसा प्लांट है जो पानी के बिना काफी लंबे समय तक सरवाइव कर जाता है, राइट? नाउ चिल्ड्रन, हाउ डू वी
शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ये जो पानी है इसकी शॉर्टेज कितनी जगह पर लोगों को फेस करनी पड़ रही है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन मेनी प्लेसेस इन आवर कंट्री। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पानी घरों में आता ही नहीं है। लोगों को लाइन लगाकर जो वाटर आता है, डेली वाटर है, जो वाटर सप्लाई है वो आती है, वहाँ लाइन लगाकर घंटों खड़े रहना पड़ता है टू गेट सम वाटर इन देयर कंटेनर्स। For example, villagers in Rajasthan have to walk for hours to get a pitcher of drinking water. एक मटका पानी लेने के लिए, एक कंटेनर भर के पानी लेने के लिए घंटों तक उनको चलकर दूर जाना पड़ता है, and they have to come back carrying that water in Rajasthan. There are places in Rajasthan like this. In most cities, water is supplied in the taps only for an hour or two. और ऐसी काफ़ी सारी cities हैं जहाँ पर सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए ही पानी टैप्स में सप्लाई किया जाता है, राइट। हम लोग कितना रेकलेसली वाटर को वेस्ट करते हैं। वी डोंट इवन गिव अ सेकेंड थॉट बिफोर रनिंग टैप्स। हम अपने घर धो रहे हैं, अपने व्हीकल्स को वॉश कर रहे हैं, इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डेली नीड्स के लिए भी पानी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, राइट। उनके पास इतना पानी है ही नहीं, उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी दूर जाना पड़ता है टू गेट वाटर। The problem is worse in the slums, और जो थोड़े lower sections हैं, जो slums हैं, right, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा problem है। Where there are very few taps, वहाँ पर हर घर में taps भी नहीं है। कुछ taps हैं उनकी, जैसे एक village में 1-2 taps हैं, सारे लोगों को वहाँ लाइन लगाकर वो वेट करते हैं उनकी टर्न का, वहाँ से पानी भर कर अपने घर में लेकर आते हैं। People have to stand in queues for hours to get that water. Right, so never waste water, children. It is precious. Now let's talk about saving water. कैसे हम पानी को बचा सकते हैं। Clean water is precious. We should not waste it. हमें उसे बिल्कुल waste नहीं करना चाहिए, right? There are a few things you can do to save water. Let's see what all you can do to save this precious water. Never leave the tap running when you are not using the water. आपके घर में अगर आप पानी नहीं आपका यूज हो रहा है कहीं और टैप चल रहा है तो that is not good, right? Always keep the taps closed. टैप्स को बंद रखें। अगर पानी यूज नहीं हो रहा है तो उसे वेस्ट ना करें। Do not let the tap running while brushing your teeth. जब सुबह सुबह उठकर और रात में सोने से पहले आप टीथ ब्रश करते हैं तो जितनी देर आप ब्रश करते हैं क्या आपका टैप चलता रहता है? No, you should not do that. Always close the tap, turn off the tap. अगर आप जितनी देर आप ब्रश कर रहे हैं पानी चलता रहेगा, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, right? So always do not let the tap running when you brush your teeth. If any tap is leaking, tell your elders and ask your elders to buy one that uses less water. अगर किसी टैप में से पानी all the time लीक हो रहा है, बह रहा है, तो अपने एल्डर्स को बताएं कि उसे चेंज कराया जाए। Be careful when watering the plants. Give the right amount of water. Do not give excess water, otherwise it will flow out and get wasted, right? जब आप plants में पानी डालते हैं तो सिर्फ उतना ही पानी डालिए जितना ज़रूरी है। अगर आप excess water दे देंगे प्लांट को तो क्या होगा? वो excess water नीचे से निकल जाएगा और eventually waste हो जाएगा। So सिर्फ ज़रूरी मात्रा में ही पानी दें आप जब प्लांट्स को देते हैं। If you find people wasting water, explain to them why you should not do so, right? अगर आप किसी को देखते हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके नेबरहुड में कोई भी अगर ऐसा है जो पानी को बहुत वेस्ट करता है, right? So you can go and politely explain to them that they should not be wasting water like that. पानी कितना precious है, कितने लोगों के पास पानी नहीं है साफ पानी पीने को, right? So all these things you can try and explain to that person politely so that he does not feel offended, but you need to explain that thing to that person. When buying a new flush tank, ask your elders to buy one that uses less water, right? जो हम जो टॉयलेट्स यूज करते हैं उसमें जो फ्लश होते हैं, राइट, हमें वही फ्लश यूज करने चाहिए जिसमें बहुत एक्सेस में पानी यूज ना हो। तो आप अपने पेरेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज गेट द फ्लश टैंक्स दैट यूज लेस वाटर। ओके, सो बाय फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स you can help in contributing, right? You can contribute in saving the water, saving the clean water, right? So now let's come to the next topic, that is rain water harvesting. ये जो पानी है, बारिश का पानी जो आता है, उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं for later use. So rain water harvesting is one way of saving water. ये पानी सेव करने का एक तरीका है।
The rainwater falling on the roof of a building normally flows down the rain and is not used. Normally क्या होता है, जो रेन वाटर है जो घरों की छतों पर पड़ता है या फिर नॉर्मली जो सड़क पर जो पानी है वो कहाँ जाता है, अल्टीमेटली वो ड्रेन्स में चला जाता है, नालियों में चला जाता है, एंड दैट वाटर इज नॉट यूजेबल. सो आपको क्या करना चाहिए, दिस वाटर कैन बी कंजर्व्ड, इसे आप सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से इस वाटर को यूज कर सकते हैं. दिस वाटर इज अलाउड टू फ्लो इनटू अ डीप होल इन द ग्राउंड. ये जो सारा पानी है क्या करते हैं, इसका ऐसा कुछ सिस्टम करते हैं कि सारा पानी आप ग्राउंड में एक बड़ा सा होल करते हैं और ये सारा पानी उसके अंदर गिर जाता है. तो क्या होता है, ये सारा पानी अंडरग्राउंड चला जाता है, वेस्ट नहीं होता ड्रेन्स में जाकर. इट दस एड्स टू द अंडरग्राउंड वाटर रादर देन बीइंग वेस्टेड, राइट. सो ये अंडरग्राउंड चला जाएगा तो आप उसे वेल्स के थ्रू, हैंडपंप्स के थ्रू, ट्यूब वेल्स के थ्रू यूज कर सकते हैं. रेन वाटर कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड इन अ टैंक एंड यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स और वॉशिंग द हाउस. और ये जो रेन वाटर है आप बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर उसे घर में भी आप उस पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट. एक बड़ा सा कंटेनर रख दें, जब रेन हो रही है तो उसमें वो पानी कलेक्ट हो जाएगा और उस पानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज इट फॉर वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग द हाउस, राइट. इन सब चीजों के लिए आप उस पानी को यूज कर सकते हैं, राइट. दैट इज ऑल्सो सेविंग water. So rainwater harvesting is what? It is a way to save the water by allowing it to go into deep holes in the ground so that it adds up to the underground water, or you can also collect it in big containers in your house and that you can use it later on. वो आप बाद में यूज कर सकते हैं पानी देने के लिए प्लांट्स में या फिर घर को धोने के लिए, व्हीकल्स को धोने के लिए, राइट. फॉर ऑल दैट यू कैन यूज दैट वाटर. क्लियर एवरीवन? So I hope you have understood this very important fact, children, कि air और water जो हैं वो हमारी need है, हमें उनको बचा कर रखना चाहिए. We must save air and water. Air को हमें pollute नहीं करना चाहिए और पानी को हमें save करना चाहिए. So now let's begin with our exercise, children. A part says fill in the blanks. Number 1, we cannot dash air but we can dash it. So हम air को क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. So we cannot see air but we can feel it. हम उसे feel कर सकते हैं, right. Number 2, air is made up of gases like, कैसे gases से मिलकर बना होता है air? It is made up of gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Number 3, we get water from dash and dash. पानी हमें कहाँ से मिलता है? We get water from rivers, seas, right? Ponds. Now number 4 is frozen water is called. जो frozen water या जमा हुआ पानी है उसे क्या बोलते हैं? Yes, it is called ice. Number 5, clean water is precious. We must not dash it. हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसे waste नहीं करना चाहिए. We must not waste it. Clear everyone? Now, B part says choose the right option and tick it. Which of these gases do we need? इनमें से कौन सी gases हमें चाहिए होती है? It is oxygen. We need it for breathing. Oxygen. Which of these activities help to keep the air clean? Let's have a look. Burning garbage, planting trees, or going to nearby places in a car. कौन सी activity से हम air को clean रख सकते हैं? Yes, by planting more trees, right? Number 3, which of these is the main source of fresh waters? Main source क्या है fresh water का? It is the rain. There you go. Number 4, which of these is a solid? Ice, water vapor, or steam? क्या चीज solid है? Yes, ice is the solid form of water. Number 5, how does it help to boil water? Water boil करने से क्या होता है? It
kills the germs, right? Now let's come to C part. Answer the following questions, children. Name 3 gases that are present in air. We have already done that. Carbon dioxide, nitrogen and oxygen, which is the most important one. Now list 2 causes of air pollution. Air pollution के 2 causes क्या हैं? Firstly, the smoke that is produced by the factories and the vehicles. And next cause of air pollution किस वजह से होता है? When you burn fuels, wood, crackers and all these also release poisonous gases, bad gases to the air. List 3 ways in which we can check air pollution. Air pollution को check करने के लिए, control करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? Firstly, you can plant more and more trees. Then how can you check air pollution? कैसे कर सकते हैं? Try carpooling with your friends. Use metros, buses for that. And also stop the use of, stop burning all these things. Stop burning plastic, stop burning wood and all. Garbage burn nahi karna chahiye. Stop burning garbage in the open air. This all adds to the air pollution. Now number 4, what do animals need water for? So animals need water for drinking and also for cleaning their bodies. Number 5 is, how do rivers get polluted? Rivers कैसे pollute होती हैं? Because the waste from the factories and homes is released into these rivers and it dirties the water. Number 6 is, what is meant by rainwater harvesting? Rainwater harvesting का क्या मतलब होता है? It is a way to save water by allowing the water on the roofs of the houses to flow into the deep hole dug in the ground, and also it can be used, people can store this water, collect and store the water in their houses in big containers, and they can use it for watering the plants, for washing houses, for washing vehicles, etc. Right? So collecting the water allowing the water to add up to the underground water by allowing it to collect in deep holes in the ground and to store it in the containers, and saving water is known as rainwater harvesting. So we have a fun time activity here, children. This is the name of the activity is cleaning water. So take some water mixed with soil. आपको क्या करना है? गंदा पानी लेना है जिसमें soil mix हो. Let us try to clean it by the filter method. हमें उसके अंदर जो impurities हैं, जो soil है, उसे filter method से हम कैसे उसको clean कर सकते हैं वो देखते हैं. So ask your teacher to give you some filter paper, right? Filter paper एक आता है, आप उसे पहले एक circle में cut कर लें, cut a circle out of it, make it into a cone. आप उसको क्या करेंगे? पहले आप उसको half में fold करेंगे, then उस half को आप फिर से एक fold करेंगे. अब क्या होगा? वो एक quadrant बन जाएगा, 1/4 of a circle बन जाएगा, right? I will show you. जैसे ये सर्कल है आपका, ये आपने फिल्टर पेपर का सर्कल कट किया, पहले आप उसको एकदम सेंटर से फोल्ड कर देंगे. अब कैसे दिखेगा आपको फिल्टर पेपर? यू विल सी फोल्ड हो गया. नाउ यू विल फोल्ड इट अलोंग दिस लाइन. अब आप उसको फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे. नाउ इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और इसके क्या होंगे? 4 फोल्ड्स होंगे. अब आप उसे कैसे यूज करेंगे? वन साइड, 3 साइड्स आप एक तरफ कर देंगे और 1 साइड एक तरफ करेंगे, राइट? 1 साइड आप 3 एक तरफ कर देंगे और जो अंदर जो फोल्ड्स हैं 3 फोल्ड्स एट 1 साइड and 1 single fold at the other side, and that you will get a filter cone. आपको एक cone type की मिल जाएगी. आप उसे funnel में यूज करेंगे, right? funnel में लगा के when you pour water through it, जो सारी मिट्टी है, soil है, वो सब उस filter paper में रह जाएगी और पानी नीचे निकल जाएगा. Pour the dirty water through it into a jar and look at the water in the jar. It is now clean. It is but not clean enough to drink, right? जो soil थी वो तो उसमें से नहीं पास आउट हो पाई, वो जो मड थी वो तो उसने सब क्लियर कर देगा, बट क्या वो पानी पीने के लायक है? नो, इट स्टिल कंटेन्स जर्म्स, राइट? जो फिल्टर पेपर है वो जो इम्प्योरिटीज हैं, राइट, उनको तो वो निकाल सकता है, जैसे सॉइल है, मड है, कुछ और पार्टिकल्स हैं, उनको तो वो रोक लेगा, बट जर्म्स दे विल पास ऑन. और उसको आप कैसे किल करेंगे? यस, बाय बॉइलिंग. आप उस वाटर को बॉइल कीजिए और वो जर्म्स भी मर जाएंगे. देन यू कैन ड्रिंक दैट वाटर. Right? Now find out from the internet about the Ganga cleaning project.
of the government of India. हमारी गवर्नमेंट ने एक गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है. इंटरनेट पर जाइए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए. And you have to make a short presentation to the class about how the river got so polluted and उसको साफ कैसे किया जा रहा है, how it is being cleaned. Okay, so किस बारे में पढ़ेंगे आप? गंगा cleaning project of the government, and you have to give a presentation in the class about the same. Right, children? Kindly do these activities. So we reach the end of this chapter, children. I hope you've understood very important needs for living children, air and water, and I hope आप भी अपनी तरफ से पूरा contribute करेंगे to to check the air pollution and to check the water pollution as well, and you will help in saving the water also. So I'll see you in the next class with my next chapter. Till then, children, keep smiling and take care of yourself. Bye bye.